Hello, everybody. Good afternoon. Is my sound audible to all of you? Good afternoon, sir. Sound is audible? Yes, sir. Okay. So we haven't met, as in we haven't met in classroom. I think I have talked with some of you or all of you regarding form fill-ups or other official stuffs, not in classrooms. So this is my first class with all of you. I'll be taking your Power System 1 lab for this semester. In the upcoming semesters, we will meet often because I have a lot of subjects in your upcoming semesters. For this semester, fourth semester, I have your Power System 1 lab. So today will just be an introductory class about how the classes will be taken, about your syllabus, from what will be the modes of conduction of labs. I'll tell just about these things. That's it. And the subjects will be started from the next classes. Your class, Power System class, is on Friday. I was supposed to take it on Friday, but I had some internet problem, so I'm taking it today, and it will not take much time. So let me show you the syllabus first. Do you have your syllabus? Have you seen your fourth semester syllabus? Hello, Yes, sir. you have seen your? Huh? Someone was saying something. Yes, sir. You have seen your syllabus? Bolo. Yes, sir. Okay. Now I have shared a PDF. Is the PDF visible to you? I have shared a PDF. Yes, sir. Okay. Yes, sir. These are the list of the experiments that you have in your syllabus. Now, if you look at the pattern, of the syllabus, you will see that most of the experiments are depending on relay, IDMT relay, differential relay, Buchholz relay. Some of them are transmission lines. Testing of transformer oil. This is from the actually insulator part. Insulating oil or transformer oil. There is one more experiment which is not mentioned here. I have seen. There is one more experiment about the solid insulators. Dielectric strength of solid insulators. This is not mentioned in your lab, but if I get a chance, I'll teach you that too. Two of them are from transmission lines, but maximum of these things are from relay part. And the last two, that is the number 13, 14, to plot annual, monthly, daily load demand of nearby area. Number 13, and number 14, single line diagram. It's a very important topic, drawing a single line diagram. I'll teach you about these things as the syllabus goes on. Since most of these are related to relay, and most of these relay related experiments are present in our V labs. Have you seen V labs in your previous classes, previous semesters? Virtual labs from the IIT Bombay? I think you have seen. Yes or no? Yes, sir. So I'm sharing with that screen the list of experiments we have in the can you see the virtual lab experiments list? Hello? Yes, sir. Okay. Now, if you see it, look at this. You have this. You have seen that this is the dielectric strength of transformer oil. You have it in the syllabus. See the shape of electrodes, dielectric breakdown, shape of electrons. This is air based. This is air based. Transformer oil is liquid based, and there is one solid insulator, which I told. Buchholz relay, and we have few of the relays. Ferranti effect is present in our syllabus in the virtual lab. Now we'll do some experiments from here, and we have lot of relay related experiments as hardware in our college. When we go back, now since we are in the lockdown situation right now, I'll be doing the virtual stuffs, experiments via virtual mode. When we will go back, I'll show all of the experiments that we have in our lab and in hardware. Okay. So basically, this will be the mode. Other than this, now if we focus on the syllabus,
the experiments present are in the syllabus will not be the only things that will be conducting. If we get some experiments that are out of the syllabus or extra from the syllabus, we'll do that too. It's not necessary that we'll be sticking to this syllabus only. For example, before knowing the testing of transformer oil, that is before knowing the dielectric strength of various types of insulating materials, you need to know about the insulators that we use in our daily life or in the transmission lines. We have an experiment about that in our labs. The different various types of insulators that we use according to the voltage strength in our lab only. I can show you that. I will show you some of the pictures and explain you about that. Other than this virtual modes, there may be a chance that I also some simulations maybe. There will be some topics where I will tell you the theory about that and maybe share some relevant videos or documents and explain the video and document about the practical working, how the experiments work practically. We'll show about that. Okay, so okay, tell me this: have you all registered in the VLab? There is an option that you can register in the VLab and give feedback after the experiment is performed. Do you know the process of registration and giving the feedback? Hello? Hello? Shabaj answer, yeah. Were you saying something? Yes, sir. Yes, sir. What were you saying? Say. Shabaj? कुछ बोल रहे थे क्या? No, sir, I'm not. No, sir, no. सर वही बोला था कि हम लोग को प्रोसेस मालूम नहीं है सर. ठीक है, I'll share the process. I'll share the process step by step in your Google Classroom. ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर दिखाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग का तो फोन में या लैपटॉप में शायद नेट ऑन है, तुम लोग एक ही साथ कर नहीं पाओगे क्योंकि जूम चल रहा है क्लास, है ना? मिनिमाइज तो होगा नहीं शायद. अब इधर वहाँ रजिस्टर करोगे तो अभी कट जाएगा नेट. सो आई विल टेल यू द डिटेल प्रोसेस. ऑल ऑफ यू रजिस्टर बिफोर द क्लास. ठीक है, and I'll tell you about the feedback. There is a process of giving feedback. I'll tell that step by step in the very detailed manner. Okay, if you have any problem, then ask me. I'll share with you. Now, I think you have done the machine labs in the virtual lab, right? Am I right or wrong? Have you done the machine labs in third sem? No, sir. V lab का कुछ किए थे, कुछ नहीं किए थे? वर्चुअल लैब का जो मैंने दिखाया. हेलो? वर्चुअल में नहीं. इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं सर वर्चुअल लैब. अच्छा अच्छा, नहीं हुआ है. IIT खड़गपुर में सर. ठीक है. तो इसका तुमको मैं एक प्रोसीड्यूर बोलता हूँ. प्रोसीड्यूर मींस द कंडीशन. वी आर एक्चुअली इन द दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, वी आर ए नोडल ब्रांच ऑफ IIT बॉम्बे, जहाँ की उनका पोर्टल से फिर दूसरा IIT हो, NIT हो या IIT बॉम्बे का हो, जो सब एक्सपेरिमेंट्स है वी कैन कंडक्ट देम वर्चुअली. तो जो ये है अटेंडेंस, जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक का प्रोसीड्यूर ये है. द प्रोसीड्यूर इज, इफ द नंबर ऑफ फीडबैक्स वी गेट फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज अप टू 10. मान लो कि 10 फीडबैक मिला, देन द टोटल सेशन विल बी कंसिडर्ड एज up to 10 means the session is not conducted. Less than 10 is it's not conducted. ठीक है, वो मानेगा ही नहीं कि हम लोग किए हैं कुछ. 10 से लेके 30, from 10 to 30 the session will be considered as mini workshop. ठीक है, अगर 10 से 30 तक फीडबैक मिला एक क्लास का, जैसे मान लो अभी मैं कोई वर्चुअल लैब करवा रहा हूँ और तुम लोग अभी मुझको छोड़ के you are 29 participants. अगर मैं भी फीडबैक दे दूं तो we are 30 participants. ठीक है, 10 to 30 it will be mini workshop. Up if the number of feedbacks is above 30, it will be considered as workshop. ठीक है, तो मेरा कहना यह है, as far as I know, जितना मुझको पता है, कॉलेज में अभी तक वर्कशॉप नहीं हुआ है. वर्कशॉप नहीं हुआ मतलब none of the departments or experiments before this, classes before this, have been able to collect more than 30 feedbacks.
समझ रहे हो? So after conduction of experiment, I want your batch or our department to be the first department or the first batch to get enlisted in that list, कि हम लोग का नाम पहले आए, कि हम ही लोग वर्कशॉप करवा पाए हैं more than 30 feedbacks. And you have students, you have I think 56 students. It is perfect, you are perfectly capable. ठीक है, मैं चाहता हूँ बाद में जब रिपोर्ट आए, रिपोर्ट कभी कभार शेयर होता है, अब सेमेस्टर वाइज हो, महीना मंथली हो, तो शेयर में दिखाता है कि इसका मिनी वर्कशॉप था, इस सीएससी का मिनी वर्कशॉप था, इलेक्ट्रिकल का मिनी वर्कशॉप था, बट अभी तक वर्कशॉप लेवल तक हम लोग कोई नहीं पहुंच पाए, समझे? आई वांट कि हमारा डिपार्टमेंट हो, एंड इट इज अप टू यू टू डू दिस. अब तुम लोग करोगे, तुम ही से होगा. आई वांट यू टू बी द फर्स्ट बैच टू हिट दैट वर्कशॉप लेवल 30 अप. तो कॉलेज को भी पता चले हम लोग का डिपार्टमेंट का, हम लोग का योर बैच का कितना अटेंटिवनेस है, कितना डेडिकेशन है टुवर्ड्स क्लासेस एंड लैब्स. ठीक है, आई वांट दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, पहला. और दूसरा बात यह है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ यू मिसिंग योर क्लासेस एज इन नॉट ऑफ you don't take the lab seriously. If I consider this attendance 30 out of 56 students, it is around it is less than 60% of your attendance of the whole class. ठीक है, टेक योर लैब सीरियसली, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि थ्योरी पढ़ लिए मतलब सब कुछ जान गए. whatever you read in the theory, it is supposed to be verified in the practical life. When you will go outside, you will not see the theory part, you have to work in practical world. तब किताब लेके नहीं जाओगे. I want most of you, maximum all of you, maybe some of you have some internet problem, but still you have to attend your classes, because there is no point. इंटरनेट का खर्चा कर रहे हो, सेमेस्टर का फीस दे रहे हो, क्लास ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा? फिर छोड़ दो कॉलेज. देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग कि मेरा सिर्फ नाम रजिस्टर्ड है, 4 साल बाद एक डिग्री मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं है. देयर इज नो पॉइंट. डिग्री देख के नौकरी नहीं होता है, तुमको क्या पता है उसको देख के नौकरी होता है. So do you have anything to ask, anything about the lab or anything about your classes, anything? Have any doubt? You can ask me, ask freely, no problem. Bolo, anyone? Since we haven't met in the classroom environment, अगर जब कॉलेज खुलेगा तो अच्छी बात है, तब लोग हम लोग मिलेंगे. We haven't met physically actually, ये तो वर्चुअली मीट कर रहे हैं वाया इंटरनेट. बोलो बोलो, कुछ बोलना है बोलो. हेलो. अच्छा, ये क्लास कैसा चल रहा है तुम लोग का, थ्योरी क्लास? हेलो, Yes, sir. थ्योरी क्लास कैसा चल रहा है? सर ठीक चल रहा है. समझ में आ रहा है सब कुछ? समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. और कौन कौन है ये सब बोलता Yes, क्यों नहीं sir. है कुछ? और बाकी जो लोग हो, गौतम कुमार मंडल, गौतम, यस सर. क्लास कैसा चल रहा है? कहाँ गया यस सर बोल के? यस सर. अच्छा चल रहा है सर. समझ में आ रहा है सब कुछ? हेलो, तुम लोग को इतना बार पूछना क्यों पड़ता है? यस सर. इतना इको क्यों हो रहा है? कहाँ पे हो ना तुम? बोल रहे कि सब कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को, जो पढ़ाई चल रहा है, ये सब्जेक्ट हो या दूसरा सब्जेक्ट हो? यस सर. अच्छा, अच्छी बात है. और तुम लोग को जब गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने बोला जा रहा था, इतना इतना बार बोलना क्यों पड़ता है तुम लोगों को? बोल बोल के मतलब लग रहा था कि तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है. क्लास किसका है, मेरा है कि तुम लोग का है? तुम लोग ज्वाइन ही नहीं करो. 5-6 बार मैंने बोला है, फिर लिस्ट बना के भेजा है. इतना बार नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगा मैं. और ये बात याद रखना तुम लोग. डोंट टेक दिस थिंग्स लाइटली कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए सर तो बोल ही देंगे, ले ही लेंगे.
नंबर मिल ही जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, यहीं पे रह जाओगे फिर। प्रणव, प्रणव कुमार दे, प्रणव, यस सर। अटेंडेंस यस लेना। सर। हाँ, अटेंडेंस लेना, इसका अटेंडेंस लेके मुझको भेजना, ठीक है? अभी से जब क्लास ओके सर। जब क्लास यस होगा अटेंडेंस ले लेना एक बार करके, और मुझको क्लास के बाद अटेंडेंस भेज देना। यस। अच्छा, तबीयत ठीक है तुम लोगों का? कोई प्रॉब्लम किसी का? अभी जो सिचुएशन है संभल कर रहना। शुभम, यस सर। कौन ये सर बोला? शुभम कुमार बर्मन, यस सर। तबीयत ठीक है? यस सर। अच्छा, और दूसरा सब्जेक्ट जो भी है उसका क्लास ठीक चल रहा है? सब सब्जेक्ट का क्लास हो, लैब हाँ हो, सर, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? यस सर। अच्छी यस बात सर। है, ठीक है, वेरी गुड। और तुम लोग जो बहुत लोग हैं डिप्लोमा से आए हैं, उन लोगों को शायद अभी तो इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर तुम लोगों का शायद एसएससी जेई का फॉर्म निकलेगा, तो शायद तुम लोग भरोगे। बहुत लोग भरते हैं, बहुत लोग सब्जेक्ट्स के लिए वेट करते हैं, बिकॉज देयर देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर इन एसएससी जेई that you will not be taught right now, because you have power system 1, you have power system 2 in the 6th semester, you have machine 2 in the 5th semester, ये सब भी आता है उसके अंदर। तो पुराना जो सिलेबस है, पुराना जो जो चीज पढ़े हो, जैसे सर्किट थ्योरी हो गया, सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, ये सब को रिवाइज करते रहना, सर्किट भी रिवाइज करते रहना, क्योंकि अल्टीमेटली सर्किट तो ये हर सब्जेक्ट में रहेगा। The subjects will get tougher, but the basic subjects you have to know, right? So keep on practicing। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर चला गया और भूल गए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट। और क्लास अटेंड करना, क्लास मिस मत करना। इफ यू आर मिसिंग क्लासेस, देयर इज नो पॉइंट, एब्सोल्युटली नो पॉइंट। ना तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का कोई पॉइंट है, ना तुम्हारे डिग्री का कोई पॉइंट है। बाकी सेमेस्टर फी और नेट का खर्चा तो कर ही रहे हो, वो भी फालतू जाएगा। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट द इंटरनेट, डू समथिंग। बहुत दिन हो गया है, अभी भी इंटरनेट रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अब बाकी मैं तुमको गूगल क्लासरूम में आई विल बी शेयरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स एज व्हेन आई गेट और रिलेवेंट टॉपिक्स, एंड गिव यू इंस्ट्रक्शंस, फॉलो दोस। मैं अगर तुमको कुछ लिखने बोल रहा तो लिख देना, लिख के सबमिट कर लेना, ठीक है? मे बी आई विल शेयर मैनुअल्स विथ यू अबाउट द लैब्स। I'll obviously share the process of registration, तुम लोग कैसे रजिस्टर करोगे वी लैब में, और कैसे तुम लोग फीडबैक का प्रोसीड्योर क्या है वो फॉलो करना, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना, ठीक है? और दूसरा बात यह है कि हम लोग अभी तो दूसरा क्लास जो सब तुम कल कर रहे हो, उसमें तुम लोग को शायद पता होगा दैट इन दिस दिस सेमेस्टर इन द लॉकडाउन पीरियड वी आर, जो भी क्लास हम लोग करवा रहे हैं, वी आर अपलोडिंग द सेम क्लास इन यूट्यूब, so that you can revise, and if some of you have missed out the classes, then you can revise and study from those labs। तो ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, मतलब आफ्टर द क्लासेस इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड करूंगा मैं, शेयर नहीं करूंगा। इंट्रोडक्शन का वीडियो देख के क्या करोगे? आई विल शेयर द, when the topics will start, I'll share the videos, I'll upload them and share them in the Google Classroom। You go through them फॉर रिवीजन पर्पस, या जिसका फर्स्ट टाइम हो। रिवीजन करने के बाद मान लो किसी का कुछ क्वेश्चन आया, कीप दैट क्वेश्चन एंड आस्क मी वो इन द नेक्स्ट क्लास। आरती, आरती असीमा, यस सर। पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे हो? गाड़ी का आवाज आ रहा है बाहर से। सर मेरा रोड साइड पे ही घर है, इसलिए। अच्छा, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे कौन है? विकास महतो,
हेलो, यस सर। पढ़ाई ठीक चल रहा है? कहाँ गए यस तुम? सर। ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो। यस सर, चल रहा है। ठीक है ठीक है। घर में हो? स्टडी मटेरियल कहाँ से ले रहे हो? हम्म। सर क्लास के बाद नोट सर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, और बाकी रिलेवेंट बुक्स या कुछ? करण कुमार चौधरी। हेलो, करण कुमार चौधरी। ये नहीं बोलेगा बात, ठीक है। नीरज कुमार दास। हेलो, नीरज कुमार दास। बाप रे, तुम्हारा तो नेट में बहुत प्रॉब्लम है लग रहा है। हेलो। बोले कि बुक्स बुक्स या थ्योरी पार्ट कहाँ से यस पढ़ रहे यस हो? सर, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देते हैं सर। अच्छा, और बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब यूट्यूब है, यूट्यूब में देखना, एनपीटीएल का बहुत सारा वीडियो है, वो भी फॉलो करना। ठीक है, सोर्स बहुत है। इंटरनेट जब होता है तो यू गेट मल्टीपल सोर्सेस। ओके, सो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क और टू से, देन यू कैन से और आस्क। अदरवाइज अभी इंट्रोडक्टरी और कुछ जानना है क्लास के बारे में, इस कुछ किसी चीज के बारे में तो बोलो। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी में खत्म कर दूंगा, इसके बाद से मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा इस नेक्स्ट क्लास से, ऑब्वियसली। बोलो, एनीथिंग, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क एनीवन? सब क्लियर है? कैसे क्लास होगा मैंने बोला, क्या करना है तुम लोग को मैंने बोला, बाकी कुछ पूछना है तो बोलो। कोमल। सर अभी जितने हाँ हाँ, बोलो, कौन बोल रहे थे? हाँ, सर अभी जितने सारे वर्चुअल लैब्स कर रहे हैं, जब कॉलेज हम्म। खुलेगा सर तो कुछ प्रैक्टिकल करेंगे क्या हम लोग? कॉलेज जब खुलेगा मतलब हम लोग जब फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट हो गए, एक तो हो सकता है लॉकडाउन के बाद हम लोग जाएं, हम लोग मतलब फैकल्टी लोग, तो जैसे अभी तो सारा जगह लॉकडाउन है हर जगह, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसीलिए वर्चुअली दिखा रहे हैं प्रोसीड्योर। बाद में हम लोग अगर पहुंचे तो जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के हम लोग वीडियो करके और लाइव सेशन हार्डवेयर में कैसे फंक्शनिंग होता है वो दिखाएंगे। और तुम लोग का जब परमिट होगा, जैसे स्टूडेंट लोग जब से अटेंड कर सकेंगे, जैसे अभी ऑल इंडिया यही चल रहा है कि कॉलेज नहीं खुलेगा मतलब भीड़ होगा, इसलिए स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द लैब्स। जब तुम लोग आ पाओगे, हम लोग तुमको हार्डवेयर में किट में कैसे काम होता है, सर्किट बना के हो, सारा सारा लैब का दिखा देंगे। ठीक है। ओके। ठीक है, और कुछ डाउट? कोमल कुमार एक बार अनम्यूट हुई थी, कुछ बोल रही थी क्या? वो सर आप बस पूछे ना कि सब क्लियर है या नहीं, तो वही आपको बोली कि यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। और शुभम फिर अनम्यूट किए थे, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, एक चीज और पूछना था सर। बोलो बोलो। सर एक्चुअली कुछ दिन पहले सर एक रूपा मैम भेजी थी इंटर्नशिप का, तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप सर करना जरूरी होता है क्या? कर लो। थर्ड ईयर में? तुम लोग थर्ड ईयर में हो? हाँ मैं सर थर्ड थर्ड सेमेस्टर सर। बात जरूरी का नहीं है, बात यह है अगर कुछ मिल रहा है कर लो। ठीक है, कहीं भी कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ सीखने का कुछ मिल रहा है, इंटर्नशिप काम करने का, तुम लोग जब सीवी में शो करवा तो पाओगे कम से कम। व्हेन वी तुम लोग जब निकलोगे एज ए फ्रेशर्स, तब तुम सीवी में क्या शो करवाओगे? कुछ एक्सपीरियंस कुछ करवा तो पाओगे नहीं, खाली ये दिखा पाओगे वी हैड ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, ट्रेनिंग फ्रॉम हेयर, हेयर एंड देयर, ये। अब ट्रेनिंग करके किसी को ज्यादा जान नहीं लेते हैं। इफ यू कैन इंक्रीज दैट, यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया है, कि अगर किस्मत अच्छा हो तो हो सकता है कंपनी वहीं से पूछ ले कि इंटर्नशिप में क्या सीखे थे। ठीक है, इसमें इस प्रोसीड्यूर में तो कभी जाना ही मत कि मुझको जरूरी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर नहीं करते हो जरूरी के चक्कर में, तो यह मिस्ड अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट, है कि नहीं? ओके सर। चला जाएगा, इससे बढ़िया है कर लो।
मिल रहा है कर लो, बहुतों को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, हो सकता है उसका सीवी में प्लस पॉइंट हो जाए, हो सकता है उसको इंटर्नशिप से जब रियल लाइफ मतलब जॉब लाइफ में जाओगे उससे कुछ फायदा हो जाए, उस लाइन में कुछ कर सको, कोई भी लाइन हो। अभी आगे बढ़ते जाओगे इसके बारे में और सीखोगे, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट द रियल वर्ल्ड एज इन द जॉब वर्ल्ड, जॉब रिलेटेड वर्ल्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट्स ऑब्वियसली। जो इंटर्नशिप करते हो या किसी का ट्रेनिंग करते हो अगर, तो वो दैट इज योर प्लस पॉइंट, दैट इज योर स्किल डेवलपमेंट, इट विल बी एडेड एज अ स्किल इन योर सीवी, है ना। जितना ज्यादा स्किल होगा दैट इज बेटर फॉर यू, उतना तुम ज्यादा जानोगे तो उतना तुम्हारा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज बढ़ेगा। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज समझ रहे हो किसको बोलते हैं शुभम? हाँ सर। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज किसको कहते हैं बोलो तो? सर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो भी हम स्किल अपने आप में इम्बाइब कर पाएंगे, वो जितना ज़्यादा स्किल इम्बाइब करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे करके धीरे धीरे लर्निंग पीरियड से आकर के मेच्योर होंगे, फिर एक्सपर्ट बनेंगे, स्पेशलिस्ट। तो मतलब किसी भी चीज़ का क्वालिटीज को कितने अच्छे तरीके से इम्बाइब कर सकते हैं, वो मान लो उसमें तुम्हारा, एक्सपर्टीज हासिल। हाँ मान लो तुम्हारा तुमको 3 स्किल आता है A B C, ठीक है। तो क्या होगा, तुम कभी जब प्रोजेक्ट में जाओगे, तुम्हारा A B और C तीनों स्किल का जितना जितना इंफॉर्मेशन है तुम शायद उसमें इनपुट डाल सको, है ना। उससे तुम्हारा प्रोजेक्ट डेवलप होगा। पहला, जो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अभी मान लो तुमको 4th ईयर में तुम लोगों का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट वर्क, यू हैव टू एवरी बैच हैज टू सबमिट अ प्रोजेक्ट वर्क, जो तुम ग्रुप ग्रुप करके ग्रुप बना के करोगे। अभी तुमको जब टेस्टिंग करोगे उसका, ब्रेड बोर्ड में टेस्टिंग करते हैं, तो उसका आइडिया तुमको कहाँ से होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, है ना। सर्किट बनेगा, उसका आइडिया कहाँ से होगा? 3rd सेम में जो सर्किट थ्योरी पढ़े तो वहां से होगा। ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो यू विल हैव द आइडिया अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो गया, सर्किट रिलेटेड हो गया, पावर सिस्टम, अभी पावर सिस्टम है, मशीन का होगा। फिर जैसे तुम लोग का लाइव एग्जांपल मैं एक देता हूँ, तुम लोग का शायद 6th सेमेस्टर में, हाँ 6th सेमेस्टर में ही है, तुम लोग का 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सम ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट द सब्जेक्ट, नाम से शायद सुने होंगे, अभी पता होना भी नहीं चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। अभी तुम लोग का जो 3rd ईयर का सीनियर्स है, उन लोग का 6th सेमेस्टर चल रहा है, दे हैव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास, तो उनका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पावर, समझ रहे हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू नीड टू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक सेमीकंडक्टर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन, सर्किट थ्योरी। फिर मटेरियल फिजिक्स जिसको कहते हैं, मटेरियल फिजिक्स मतलब कौन से मटेरियल में कैसा इन कंडक्ट होता है, या कोई भी मटेरियल रिलेटेड फिजिक्स का नॉलेज, इतना कुछ चाहिए होता है। तो यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद तुम ये एक सब्जेक्ट कर पाओगे। ठीक है, जैसे ये मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल दिया, और भी दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तब तो सारा सब्जेक्ट का एक ही साथ एप्लीकेशन आएगा। जैसे अभी गेट एग्जाम दोगे तुम लोग, उसका अगर नंबर डिवीजन, सभी लोग देते हैं गेट एग्जाम, एवरी इंजीनियर ड्रीम इज टू क्रैक गेट एग्जाम एंड गेट गुड मार्क्स इन इट। गेट में एक क्लासिफिकेशन तुमको बताता हूँ, तुम लोग जो सर्किट थ्योरी किए हो 3rd सेम में, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 तो 15 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथ का आता है, 15 नंबर आता है तुम लोगों का जनरल एप्टीट्यूड से। बाकी रहेगा 15 15 30, मतलब 70 मार्क्स। 70 से अराउंड 10 to 12, 10 नंबर आता है सर्किट थ्योरी से। लास्ट ईयर 14 नंबर आया था सर्किट थ्योरी से, एक सब्जेक्ट से। तुम लोग का भी पावर सिस्टम 1 है, पावर सिस्टम 1+2, पावर सिस्टम 2 पर होगा 6 सेम में। पावर सिस्टम से 10 नंबर, लगभग लगभग 10 नंबर आता है। दीज आर बिग सब्जेक्ट्स, दीज आर, एंड दिस इज अ कोर्स सब्जेक्ट ऑफ यू। पावर सिस्टम वेरी कोर्स सब्जेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल का मशीन, पावर सिस्टम, सर्किट एकदम कोर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, और कुछ किसी को बोलना है बोलो, बोलो बोलो, फ्रीली बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो, बोलना है, कुछ पूछना है सब्जेक्ट या कुछ किस चीज के बारे में, बोलो। सर सेमेस्टर 7 और 8 में क्या होता है? कौन सा सेमेस्टर सब्जेक्ट पे लेक्चर होता है?
7th और 8th का भी चाहिए तुमको? सर हाँ 7 और 8 में क्या होता है कॉलेज में? ना ना, मैं बोल रहा तुमको 7th और 8th का भी चाहिए, डायरेक्ट 4th ईयर। कहाँ गया हो दीपक? सर सिर्फ जानना है सर। 7th 8th में तुम लोग का 7th में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। उसका भी मैं लैब में लेता हूँ। ड्राइव्स है 8th में, सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स है, और भी सब्जेक्ट्स है। दीज आर, ये मुझको याद है क्योंकि तुम लोग का ये सब 7th 8th का इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, ये सब में आता है ये सब। बाकी प्रोजेक्ट में मैक्सिमम चीज रहता है, क्योंकि एक चीज तुम गेट का अगर सिलेबस देखोगे, पैटर्न फॉलो करोगे, उसमें तुम लोग देखना, स्टूडेंट्स आफ्टर देयर 6th सेमेस्टर आर अलाउड टू सिट इन द गेट एग्जाम। 6th सेम के बाद तुम लोग गेट पे बैठ सकते हो, क्योंकि गेट का सिलेबस अप टू 6th सेमेस्टर ही है। इसका मतलब क्या है, अगर 6th सेम तक तुम लोग ठीक से पढ़ाई करके गेट क्रैक कर ले तो अच्छा नंबर आता है। इट मीन्स दैट आफ्टर 6th सेम तुम लोग का मतलब गेट का रिजल्ट निकलने के बाद देयर आर अदर पीएसयूज, देयर आर अदर आईआईटीज एंड एनआईटीज जहाँ पे तुम एमटेक कर सकते हो हायर एजुकेशन के लिए, या फिर पीएसयू में हो, या फिर बहुत ज्यादा जॉब एप्लीकेशन का स्कोप बढ़ता है ना। अगर तुम कर लेते हो बिफोर 4th ईयर, तुमको अगर ठीक से किए हो सकता है पीएसयूज में नौकरी मिल जाए। और 7th 8th में जो आता है वो इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस में आता है, गेट के सिलेबस में नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इट इज वेरी, इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। लेकिन यह प्रॉब्लम है कि तुम लोगों का जो बैच है, मतलब जेयूटी का अभी 7th 8th सेमेस्टर का सिलेबस निकला नहीं है यूनिवर्सिटी से। तो इन जनरल जो रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी रहता है, ड्राइव्स तो मैंने बोल दिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का शायद एक रहता है, सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है। 7th 8th का तुम लोग का जेयूटी का सिलेबस नहीं निकला है, बिकॉज देयर आर सम वेरिएशंस इन योर जेयूटी सिलेबस फ्रॉम योर प्रीवियस सिलेबस। जैसे 6th सेमेस्टर में एक ये है सिमुलेशन करके एक लैब है तुम लोगों का, जो पहले किसी का नहीं था। ठीक है, अभी 2nd ईयर कर लो, 3rd ईयर में तुम लोग को मैं हो या पंकज सर हो, जो भी रहेंगे, मैं भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, सिमुलेशन के बारे में तुम लोग को सिखा दूंगा। अभी क्योंकि तुम लोग का है ही नहीं, इसलिए आई एम नॉट टचिंग दैट पार्ट। और कुछ बोलो, बोलो बोलो। सर इंटर्नशिप के लिए दुमका में कहाँ पे कर? दुमका में अभी तो फिजिकल इंटर्नशिप नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? यस सर। अभी तो फिजिकली नहीं हो रहा है ना इंटर्नशिप, नो सर। तब वर्चुअल हो रहा है सर। वर्चुअल हो रहा है, तब जगह पे कहाँ डिपेंड करता है फिर? इफ एवरीथिंग इज वर्चुअल तो इट डजंट डिपेंड ऑन द प्लेस। जब ऑफलाइन होगा तब? होने तो दो, तब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो जब ऑफलाइन होना है तब? अरे जब होगा तब ओके। रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि नहीं, कैसे होगा। और इंटर्नशिप का जो लोग करवाएंगे उनका भी तो गाइडलाइंस कुछ होगा ना, कॉलेज से तो नहीं बोल सकते। कॉलेज से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे होगा। अब जो करवाएंगे इंटर्नशिप, कोई कंपनी अगर XYZ, कोई कंपनी X अगर करवा रही है इंटर्नशिप, उनका भी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होगा, तो तुमको उनका गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। कॉलेज का काम है नाम भेजना, हम लोग तुमको लिंक भेज सकते हैं कि कहाँ पे जाओ। जहां जाओगे, जिसके घर में जाओगे, उन्हीं के नियम से रहोगे ना। जहां से जा रहे हो वहां का नियम से तो नहीं रहोगे। यस सर। और और कुछ बोलना है बोलो, अराउंड 4 मिनट बाकी है जूम मीटिंग का, तो कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं इसी में खत्म करके बंद कर दूंगा। अच्छा हेलो, सर 4th का एग्जाम कब तक होगा? 4th का एग्जाम तो अभी वो तो यूनिवर्सिटी पे है। जो तुम लोग को फॉरवर्ड किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, सब यूनिवर्सिटी का आया है, यूनिवर्सिटी से भेजा है, हम लोग भेज दिए। अब कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स ये कॉलेज का नहीं होता है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। ठीक है, तब यूनिवर्सिटी देखते हैं क्या सोच रहा है, फर्दर कुछ बोलेगा शायद। बोलो, और कोई, और एक कोई आया था। हाँ सर, हम्म अभी पंकज सर एक ग्रुप बनाया सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जिसमें से सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग टीचर्स के कैटेगरी में रखते हैं। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में किस तरह की एक्टिविटीज होगा?
वो तो टीचर लोग बोलेंगे, जो लोग करवा रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट जो करवा रहे हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट जो करवा रहे हैं वो लोग कैसे लेंगे, क्या होगा, शायद मिनी प्रोजेक्ट कुछ रहता है, अभी सर लोग क्या करवाएंगे वही बोलेंगे। ठीक है, अभी आज देख लो, आज ही तो है शायद पहला फर्स्ट क्लास है ना आज। हाँ सर। तो हाँ हाँ सर, हाँ सर। आज भी वही बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी कुछ ही बोलेंगे, जैसे हम लोग करवा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ। जैसे तुम लोग का लास्ट 2 वीक में भी था, लेकिन फर्स्ट वीक में तुम लोग का ये आ गया प्रैक्टिकल का दिन में, फ्राइडे को है, फ्राइडे को तुम लोग का आया था, ईद आ गया था, क्लास ऑफ था। फिर लास्ट फ्राइडे को तुम लोग का एग्जाम चल रहा था इंटरनल, इसलिए फिर ऑफ हो गया, नहीं तो अभी तक 1-2 एक्सपेरिमेंट हो भी जाता तुम लोगों का। ठीक है, आगे से नहीं होगा, आगे से अगर होगा भी तो आई फाइंड ए डिफरेंट वे। जैसे सैटरडे को तुम लोग का कम रहता है, टाइम मिले तो मैं करवा दूंगा। और सर तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जो प्रोजेक्ट दोनों एक ही है क्या? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तुम लोग अगर सिलेबस देखे हो वहां पे तो लिखा होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्लैश करके मिनी प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट बाद में रहता है, प्रोजेक्ट वर्क 4th ईयर, हर सब कुछ का ही 4th ईयर रहता है। मिनी प्रोजेक्ट अब देखो मीटिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं सर, ठीक है, वो देख लो, आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, करण कुछ बोल रहा था। ठीक। ये सर इंटर्नशिप सर वर्क फ्रॉम होम का कोई आइडिया है सर आपके पास? मैं ही तो कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। नहीं सर, हम लोगों के लिए। इंटर्नशिप में क्या बोला है, वर्क फ्रॉम होम कुछ बोला है क्या? नहीं मतलब सर पूछ रहे हैं बस कि ऐसा कोई ऐसा, अब क्योंकि सर अभी तो कोविड के टाइम में सर तो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही होगा, तो अभी बेस्ट टाइम है सर जी सेमेस्टर में। इंटर्नशिप में तुम लोग देखो तुमको क्या बोलता है, मतलब ज्वाइन अगर किए हो कहीं पे, मैंने क्या बोला, जहाँ पे जाकर वो लोग डिटेल गाइडलाइंस दे देगा। ठीक है, तुमको घर में बैठ कर क्या क्या करना है, और बेस्ट भी शायद इंटरनेट चाहिए होगा। ठीक है, अब जिस फील्ड में जा रहे हो उसका होगा ना। मैं जैसे मैं टीचिंग का फील्ड में हूँ, तुमको इसी का फील्ड का बोल सकते हो, जैसे ऑनलाइन हम लोग ये क्लास ऐसे ऐसे करवा सकते हैं। तो जिस फील्ड का होगा रिलेवेंट वर्क फ्रॉम होम का टाइप हो, जैसे आईटी में ये शेयर कर देते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं, वहां से ऑनलाइन बैठ के, क्योंकि नेट का ही काम है, घर में बैठ के कर सकते हैं, है ना। जहाँ पे जाओगे वहां पे बोलेगा ना रिलेवेंट, जिस रिलेटेड काम होगा, समझे। यस सर। अटेंड करो पहले, ये सब चीज अटेंड करो। अटेंड जब कर लोगे ना, एक या दो क्लास किसी चीज का भी, इंटर्नशिप का हो, जैसे EX401 का पूछ रहा हूँ वहां का हो, 1-2 क्लास पहले अटेंड कर लो, आइडिया खुद से हो जाएगा। फिर उसके बाद डाउट हो फिर पूछो, क्योंकि पहले ही शुरू होने से पहले पूछोगे कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग देखे ही नहीं हो जो चीज, खाली बोलने से होता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करो, खाली थ्योरी पर का नहीं होता है। थ्योरी में देखेगा करंट जा रहा है, कहाँ से देखोगे तुम, वो सब प्रैक्टिकल में ही ना देखोगे। ठीक है, अभी शायद 1 मिनट का सर कम जैसे बाकी है। हाँ सेमिनार होने वाला है सर आज शाम को शायद। शाम को सर आज शाम को शायद एक सेमिनार